Good afternoon, everyone. Let's wait for everyone to join for 2 minutes. Okay, I'm locking the meeting now. Now click on raise hands, those who want to join discussion. Good afternoon, Sayam. Good afternoon, Gracie. Good afternoon, sir. माधव Good afternoon, sir. माधव, तुमने लास्ट टाइम भी हैंड रेस किया था, मैंने तुम्हें अनम्यूट किया था, फिर तुमने म्यूट कर लिया था। अभी फिर अनम्यूट किया तुम्हें, अब म्यूट मत कर। सर वो उस दिन गलती से हो गया था, वो फिर वापस अनम्यूट हुआ नहीं। ओके। गुड आफ्टरनून सक्षम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अनन्या। बैकग्राउंड में किसका टीवी चल रहा है? Because I'm not gonna have a best friend. We've been boys since kindergarten. We're just friends. We were marvelous. We turned 25 next year. We've got these friends for 20 years. I'm hanging out with my ex. Yeah, like no, yeah, you guys leave. As long as you leave together, I'm happy. Just leave together. No, let's just leave. Yeah, you guys leave together. Let's just okay. Just don't talk to me anymore. You're my best friend. Don't call me your best friend. Why are you mad? अनन्या का टीवी चल रहा था ये। अनन्या, स्विच ऑफ द टीवी। Okay, shall we start? Yes, sir. Right. Do you remember what we discussed in the previous class? Yes, sir. What was it? What did we discuss in the previous class? नहीं याद किसी को? अब कुछ याद आया? Yes, sir. Sir, last time हमने trade barriers के बारे में पढ़ा था. Yes, we discussed the changes in various policies which were made according to new economic policy of liberalization, privatization, and globalization. Madhav, do you know this Ananya? अनन्या को बोलना। Yes, sir. हाँ, अनन्या को बोलना, उसने अपना रेज हैंड भी क्लिक किया था और उसको मैंने अनम्यूट किया तो पीछे टीवी की आवाज कंटिन्यूअसली आ रही थी उसकी, तो आगे से वो नहीं करेगा ऐसा। ओके ठीक है, और बैकग्राउंड में अगर कुछ ओके सर
वैसे तो नहीं चलना चाहिए, अगर चल रहा है तो एटलीस्ट म्यूट रखें, फिर रेज हैंड वगैरह ना करें. Okay, now before we continue Okay, sir. further, many of you will be appearing in some entrance exams next year for entry into various professional courses. How many of you are planning to do so? Courses like Bachelor of Management Studies. Okay, Yes, two sir. have raised, some have raised their hands, so they are saying that they are planning to do so. There are many professional courses in field of commerce, management, for which you can apply after class 12th. Many of you may be applying for such courses. Yes, Madhu, you want to say something? No, sir. For the course, I raised my hand. Okay. So in these courses, one component is general knowledge. In these entrance exams, one component is general knowledge. It is important that you start preparing for these entrance exams from now onwards only. To improve your general knowledge, to improve your current affairs, you should watch at least half an hour news every day. ठीक है, all of you. और न्यूज कहाँ पे देखनी है? किसी प्राइवेट चैनल पे नहीं. वॉच दूरदर्शन न्यूज. किसी प्राइवेट चैनल पे देखोगे वो आधे घंटे तक एक ही न्यूज को खींचते जाएंगे. डीडी न्यूज पर आप देखोगे हाफ एन आवर में आपको पूरे दिन की मेन हाइलाइट्स मिल जाएंगी. ठीक है, तो करंट अफेयर्स अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेक अ हैबिट ऑफ वॉचिंग न्यूज एवरी डे फॉर half an hour. Another portion of these exams, entrance exams, is business aptitude. To prepare for that, you should start watching from today itself any business channel for half an hour every day. CNBC Awaz is a good option. You can watch that, right? Half an hour every day. शुरू में उसमें कई चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, but when you watch it regularly, over a few days you will start understanding many things. ठीक है, उससे आपके बिजनेस एप्टीट्यूड की तैयारी हो जाएगी. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसके अलावा हाफ एन आवर आपको रोज कोई नॉलेज बेस्ड चैनल देखना चाहिए. एपिक है जैसे, या डिस्कवरी है, जिससे कि आपकी और जनरल नॉलेज इंप्रूव होगी करंट अफेयर्स के अलावा. एंड हाफ एन आवर यू शुड वॉच सम प्योरली एंटरटेनिंग प्रोग्राम. It may be a comedy, right? But don't watch anything on television or web series जो आपको टेंशन देता है. जो टेंशन बढ़ाते हैं ऐसे प्रोग्राम्स मत देखो. जो टेंशन रिलीज करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स देखने चाहिए. ठीक है, एंटरटेनमेंट सेक्शन में. क्लियर? Yes, sir. Okay. We were discussing business environment. We discussed importance of business environment. Now we said that as managers, as business owners, you must keep scanning your environment. You must keep monitoring the changes happening in environment. This process is called SWOT analysis. What is it called? SWOT analysis. SWOT. SWOT analysis. SWOT analysis. Any guess what this term stands for? SWOT. Sir, strength, weakness, opportunity, and threats. Very good, Madhav. Strengths, weaknesses, opportunities, and threats. So we should do this SWOT analysis on a regular basis. What is SWOT analysis? Let me explain. You should, as a business and as an individual person also, you should know what are your strengths. First, let's talk about a business. A business firm, a manager should know what are the strengths of their business firm, of their company, so that they can take the best advantage of those strengths. Then they should list out the weaknesses of their firm or their company or their product, so that they can keep making efforts to improve upon those weaknesses, and also ensure that the competitors or outsiders do not take advantage of their weakness. ये हो गया strength, weakness.
Third is opportunity. Whenever an opportunity comes, we should use our strengths to make the best benefit of that opportunity, to avail that opportunity. And T stands for threat. We should keep scanning the environment, and whenever we sense any threat, we should take measures to protect ourselves from that threat. Clear? Yes, sir. So this is SWOT analysis. As individuals भी आप सबको करना चाहिए. आज की क्लास के बाद बैठ के करना, अपनी एज एन इंडिविजुअल अपनी स्ट्रेंथ्स की एक लिस्ट बनाना कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं. किसी की स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस हो सकती है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स, किसी की कुछ और स्किल्स हो सकती हैं. ठीक है, तो जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनकी लिस्ट बनाना. फिर एक लिस्ट बनाना जो आपकी वीकनेसेस हैं. वीकनेसेस की जब तक लिस्ट नहीं बनाते हम, हमें कई बार पता ही नहीं होता हमारे अंदर क्या वीकनेस है. जब हम सोचने बैठते हैं, लिखने बैठते हैं, तब हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये वीकनेस मेरे अंदर है. जब हम रिकॉग्नाइज करेंगे तभी हम उन वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए एफर्ट्स करेंगे. जब तक हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे तो उन्हें ओवरकम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. राइट? सो मेक अ लिस्ट ऑफ Yes, योर sir. स्ट्रेंथ्स, मेक अ लिस्ट ऑफ योर वीकनेसेस. वीकनेस की लिस्ट बनाते ही साथ साथ उसे वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए आपने क्या एफर्ट्स करने हैं वो प्लान करो और करने शुरू कर दो. और जब तक वो ओवरकम नहीं हो जाती तब तक कोशिश करो कि आप अपनी सारी एक्टिविटीज को ऐसे मैनेज, इस तरह से मैनेज करो कि आपकी वीकनेस की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई उसकी अनड्यू एडवांटेज ना उठाए. ठीक है? देन कम्स अपॉर्चुनिटीज. अब देखो आपकी लाइफ में जो भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो अपनी स्ट्रेंथ्स को बेस्ट यूज करके कैसे आपने उस अपॉर्चुनिटी को का बेनिफिट उठाना है, और जब भी कोई थ्रेट आती है तो उससे कैसे बचना है. ठीक है? अपॉर्चुनिटीज को यूज करने में जनरली हमारी स्ट्रेंथ्स हमारी हेल्प करती हैं. थ्रेट से बचने में भी थ्रेट्स जनरली अटैक करती हैं हमारी वीकनेस पे, उससे हमें बचना है. ठीक है? तो ये एक्टिविटी आज करना क्लास के बाद, एंड इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we continue from where we left in the last class. We discussed what all changes were made by the government in various policies as per the new economic policy. So now we will discuss what is the impact of this new economic policy on business. ये जो new economic policy government ने adopt की, policy of liberalization. आगे liberalization, privatization and globalization. ठीक है? थोड़ा जाग जाओ, एनर्जेटिक हो जाओ, सोए सोए से क्यों हो रहे हो तुम लोग. सो इस पॉलिसी का इंडियन बिजनेस पर क्या इंपैक्ट हुआ, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस पॉइंट्स. फर्स्ट इज इंक्रीज्ड कंपटीशन. जैसे ही लिबरलाइजेशन हुई और बहुत सारी फर्म्स हर फील्ड में स्टार्ट हो गई, प्लस ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन कंपनीज भी बहुत सारी आ गई हर फील्ड में. सो ओवरऑल कंपटीशन इंक्रीज्ड. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Next point, more demanding customers. Earlier what used to happen was there were very limited sellers of or service providers of any product. So consumers did not have much choice. Even if consumers were getting a poor quality product or a poor service, they had no other option to go away to. So they accepted whatever they were getting. But now with increased competition, when more and more firms, companies came in every field, customers now have multiple choices. If one company is not providing them good quality products, they can switch over to the other one. If one service provider is not providing them good service, they will switch over to the other service provider. So customers have become more demanding. Now customers are demanding the best quality in terms of goods as well as services. And if they don't get it from their existing supplier, service provider, they can easily switch over to the other one.
Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next point, necessity for change. In highly competitive and fast changing business environment, it is very important to change with the changing times. If we do not change our business plans or policies according to the changing environmental conditions, then we may lag behind in competition. तो फिर हम पीछे रह जाएंगे और फिर बाद में कोप अप करना मुश्किल होगा. तो बिजनेस एनवायरनमेंट में इतने चेंजेस हो रहे हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से that we need to keep changing our plans, policies accordingly. Clear? Yes, sir. Next point, Yes, sir. rapidly changing technology. We took examples in electronics industry, in automobile industry. So many technological changes are taking place so fast. Every year there is some new technology. If you take example of cars, mobile phones, televisions, so business firms have to keep upgrading their manufacturing process, their selling and marketing process according to the latest technology. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Next point, need for developing human resource. Now companies are realizing the importance of good employees. Human resource means employees. So companies are first of all selecting the employees very carefully, because they know if they have good employees, they will be able to provide good quality products and services to the customers. And if customers are happy, obviously their business will grow. But to keep customers happy, you need to have good, efficient, effective employees, and you need to keep your employees happy. So now companies are focusing on selecting employees very carefully so that they have efficient, effective employees. Secondly, after selecting, they give proper training to their employees periodically. Generally on an annual basis, they keep upgrading the knowledge, the skills of their employees so that their employees remain abreast with the latest developments in their field and are able to provide best services. Then Yes, sir. companies are providing very good salary packages to the good employees, to retain good staff with them. Otherwise, the employees may shift to another company if they get a better salary over there. So they are paying very well. Plus, many companies are offering several other benefits to the employees. Work from home is there. Then recreational areas are there in the offices, where if the employee is tired, the employee can just go to the recreation room, play table tennis, play carom over there, or just listen to some music and for some time and then come back to his seat and work. Many other facilities are being given by the companies to the employees to keep the good staff with them. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Then market orientation. पहले क्या concept होता था? Sellers were very less in every field. In many fields there was only one seller. For example, telephone in Delhi and Mumbai only MTNL. Okay. Life insurance only LIC. In some fields a few more were there, but very limited sellers or service providers were there. So the focus was customer will come to the firm, to the business firm, to the company to get the services. ठीक है, लेकिन अब कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, हर फील्ड में बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, तो अब कंपनीज कस्टमर पे फोकस करती हैं, मार्केट पे फोकस करती हैं. एक जनरली कहा जाता है कस्टमर इज द किंग, कि कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना, खुश रखना बहुत जरूरी है. तो इसलिए अब कंपनीज एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेटिस्फाइंग देयर कस्टमर्स, इस सब पर बहुत फोकस करती हैं. क्लियर? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट पॉइंट, लेस बजटरी सपोर्ट फॉर पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर. जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज होती थी, डिपार्टमेंट्स होते थे, जैसे रेलवेज है,
DTC है, MTNL है, LIC है, इनमें क्या होता था, ये कुछ एग्जांपल्स हैं और बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स अगर लॉसेस इनकर कर रही होती थी तो उनके लॉसेस को कवर किया जाता था कहां से? बजट से। गवर्नमेंट बजट से उन्हें और कुछ पैसा दे देती थी जिससे कि उनका लॉस कवर हो जाए। अब गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब कंपटीशन है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो जो प्योरली वेलफेयर सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, उनको छोड़कर बाकी कंपनीज को गवर्नमेंट कह रही है कि या तो आप प्रॉफिटेबली रन करो अपनी एस्टेब्लिशमेंट, नहीं तो हम इसे प्राइवेटाइज कर देंगे, मतलब इसके शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे। देन योर कंपनी विल बिकम अ प्राइवेट कंपनी। यस माधव। Sir, the most recent example of this is Air India and LIC. Yes. Can you elaborate? Yes, sir. Sir, because of boom in aviation industry and the private airlines giving cheap tickets, Air India has been in loss. So, sir, there was a tender issued by the government to sell Air India, and also in the budget of this year, there was a provision for selling LIC shares. Yes, very good example. Right, very soon it is said that LIC shares will be privatized. They will be opened for general public to purchase. Now, what is your opinion on the policy of globalization? Is it good? Is it bad for our country? What is your opinion? Sir, may I speak? Yes, yes. Sir, it is good to the extent till it's benefiting our country. Like in India, after globalization, we have seen a very huge amount of Chinese products, which is now harmful. Yes. So it should be in a balanced way that the import shouldn't increase the exports. Okay. Anyone else? Excuse me, sir. Yes. Gracie. Sir, but it helps. Yes, sir, Gracie. Bolo. Sir, but it helps as it brings new technological innovations in India that we were not acquainted to before. Right. Anyone else? Okay, I agree with both of you, whatever you said. Now I'll summarize my views on this globalization. Because of globalization, so many foreign MNCs have entered Indian markets. Okay, लेकिन और globalization is not something new to our country. हमारे शास्त्रों में लिखा है वसुदेव कुटुंबकम, means this whole world is a one big family. तो ग्लोबलाइजेशन में हम शुरू से बिलीव करते रहे हैं. एंड यू मस्ट हैव हर्ड इन एंशिएंट पीरियड इंडिया यूज्ड टू बी कॉल्ड गोल्डन स्पैरो. Yes, sir. क्यों? क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड में स्पाइसेस, मसलिन क्लॉथ, ज्वेलरी, इस तरह के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था उस टाइम. एंड वी यूज्ड टू अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड, बिकॉज उस टाइम ट्रेडिंग जो होती थी वो मेनली गोल्ड और सिल्वर के एक्सचेंज में होती थी. तो इंडिया वाज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ग्लोबलाइजेशन उस टाइम पे था. और उसी इंडिया की रिचनेस से अट्रैक्ट होकर ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, और उसी रिचनेस से अट्रैक्ट होकर ब्रिटिशर्स से पहले अफगान इन्वेडर्स जो थे, मुगल्स जो थे, वो आए थे यहाँ पर, और सबने बहुत लूटा इसे. और ब्रिटिशर्स ने तो पूरे 200 साल तक बड़े अच्छे से लूटा, लूट के अपनी कंट्री में ले गए. यहाँ के सारे जो रिचनेस थी, गोल्ड, डायमंड, इतना सारा यहाँ से ले गए वो. डिस्पाइट दैट, इवन टुडे इंडिया इज वेरी रिच अगर इसे प्रॉपरली इंडियन इकोनॉमी को मैनेज किया जाए. हाँ, उतनी नहीं रह गई ऑब्वियसली. तो ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज नहीं है. इंडिया में ग्लोबलाइजेशन बहुत पहले से थी, शुरू से थी. लेकिन आज की डेट में जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन इंप्लीमेंट की जा रही है, वेयर फॉरेन कंपनीज को ज्यादा इन्वेस्ट करने की परमिशन मिल रही है इंडिया में, लेकिन इंडियन कंपनीज को बाहर की कंट्रीज में उतना इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं मिल रही. तो ये अनबैलेंस्ड ग्लोबलाइजेशन है, एंड इट इज हार्मिंग अस. व्हाई?
शॉर्ट टर्म में हमें लगता है बड़ी अच्छी बात है, कोई फॉरेन कंपनीज आ रही हैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, यस बढ़ रहे हैं। लेकिन एक सिंपल सी बात समझने की जरूरत है, अगर कोई भी बिजनेसमैन कहीं पर बिजनेस स्टार्ट करता है, अगर वो 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो अगले 10 साल में वो 100 के 150 200 उसे बनते हुए दिख रहे होंगे तभी इन्वेस्ट करेगा। अगर उसे 100 रुपए के 100 रुपए ही रहेंगे तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, कुछ रिटर्न एक्स्ट्रा आएगी तभी इन्वेस्ट करेगा। तो आज की डेट में जितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से, वो तो हमें बेनिफिट लग रहा है, पर हम ये नहीं रियलाइज कर रहे कि आने वाले 10 20 50 साल में ये उससे कितना ज्यादा ले जाएंगे हमारी कंट्री से कमा कमा के। तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। But sir, लेट मी फिनिश देन आई विल आस्क यू टू कमेंट। उसके अलावा जब ये फॉरेन कंपनीज, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं जिनके कंपटीशन में इंडियन कंपनीज अगर उतनी स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली, तो वो compete नहीं कर पाती उतना, वो उतना एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड नहीं कर पाती, मार्केटिंग पे स्पेंड नहीं कर पाती, तो बहुत सारी स्मॉल स्केल जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो जाती हैं। ये एक और ड्रॉबैक है इस तरह से ग्लोबलाइजेशन जो हो रही है उसका, ठीक है। तो और इनफैक्ट अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा G20 समिट में दैट इवन दिस कोरोना वायरस स्प्रेड इज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ही सेड ग्लोबलाइजेशन हैज फेल्ड अस। ये ग्लोबलाइजेशन का ही रिजल्ट है कि इतने लोग मूव कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जिसकी वजह से इतनी फास्ट स्प्रेड हो गया इस तरह का डिजीज। तो हमें करना क्या चाहिए? अगर हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो एज इंडिविजुअल्स हम बहुत कुछ कर सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी लाए या ना लाए, व्हाट वी कैन डू इज वी शुड प्रेफर लोकल स्वदेशी प्रोडक्ट्स। हमें अपनी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स प्रेफर करने चाहिए। जब और हर प्रोडक्ट में, ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में इंडियन ब्रांड्स हैं। आप सिर्फ नेट पे सर्च करो, जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है आप नेट पे लिखो, सपोज आपने एक फोन, मोबाइल फोन खरीदना है, आप लिखो मोबाइल फोन इंडियन ब्रांड्स, इंडियन कंपनीज, आपको बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। इंटेक्स है, लावा है, कार्बन है, ठीक है, कई इंडियन ब्रांड्स हैं अवेलेबल जिनकी अच्छी क्वालिटी है तो और रीजनेबली प्राइस भी हैं। सो व्हाई नॉट प्रेफर और ओन इंडियन प्रोडक्ट्स वी शुड, जिससे कि हमारी इकोनॉमी का पैसा हमारी इकोनॉमी में ही रहे और ग्रो हो हमारे इंडियन बिजनेसेस। और वो भी कोशिश हमारी होनी चाहिए, अगर लोकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट खरीदने से बेटर है इंडियन में भी अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स खरीदें, ताकि जो ये डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ है कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं कुछ लोग बहुत गरीब हैं, वो भी कम हो। अगर हम स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो हमारे उनकी भी इनकम बढ़ेगी और पूरी कंट्री में, इकोनॉमी में इनकम और वेल्थ इक्वली स्प्रेड होगी, रादर देन मोस्ट ऑफ इट गोइंग टू द लार्ज कंपनीज। सो दैट इज माय सजेशन, व्हेनेवर यू बाय एनीथिंग, बाय स्वदेशी लोकल प्रोडक्ट्स। यस माधव, नाउ यू कैन स्पीक। sir, as you quoted, for the long-term picture, Indian companies should also invest in foreign countries. But sir, Yes. because of the disparity between the currencies of India and other countries, sir, don't you think it's difficult for Indian companies to invest in countries like USA and Europe, in countries in Europe which You are right. mostly invest in it? Yes, you are absolutely right. Now there are two aspects to it. First is many Indian companies are still investing abroad. One very good example is Tata Group of Companies. उन्होंने जैगुआर को टेक ओवर कर लिया, लैंड रोवर को टेक ओवर कर लिया, ठीक है। तो कई इंडियन कंपनीज हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन और ज्यादा ये इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो एक्सचेंज रेट डिस्पैरिटी है, डॉलर इतना महंगा है, उसको भी सिचुएशन को इम्प्रूव करने में ये चीज हमारी हेल्प कर सकती है। अगर हम लोकल स्वदेशी प्रोडक्ट्स ज्यादातर लोग खरीदेंगे तो हमारी इंडियन इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, और जब हमारी इंडियन इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी तो डॉलर का रेट कम होगा, रुपी का रेट बढ़ेगा, तो वो डिस्पैरिटी भी कम होगी। इंडिपेंडेंस, जब हम इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, उस टाइम 1 रुपी वॉज इक्वल टू $1। Yes, sir. ये इतना गिर गया है इंडियन रुपी या डॉलर इतना बढ़ गया है इसलिए क्योंकि अमेरिकन गुड्स की डिमांड ज्यादा है
और इंडियन गुड्स की डिमांड कम है, तो एटलीस्ट हम अपनी कंट्री में तो इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ा सकते हैं, उनकी कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं, उससे इसमें भी हेल्प मिलेगी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Anything Yes, else sir. anyone wants to say till here? No, sir. Okay, so we continue. Now, we discussed that business environment is continuously changing, and in this impact we have studied it's increasing the competition. So how should you as a manager or a business person deal with these changes in business environment? ये जो highly competitive environment होता जा रहा है, इससे क्या किन-किन टेक्निक्स के थ्रू हम डील कर सकते हैं? क्या-क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है हमारी उससे डील करने की? Sir, providing Sir, better emphasizing on the quality. Yes, Gracie. Sir, emphasizing on the quality of products. Yes, very good. हम अपने प्रोडक्ट The की goods we क्वालिटी बहुत produce. अच्छी रखें जिससे कि हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स खरीदना पसंद करें. माधव? Sir, cheap rates quality है. Sir, building a brand value and a customer relation. यस, ब्रांड वैल्यू एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी से बनेगी, दूसरा हमारे पब्लिक रिलेशन एफर्ट्स के थ्रू बनेगी. दैट वी शुड डू. संयम ने कुछ बोला था शायद बीच में. Sir, cheap rates. हाँ बोलो. Sir, the product should be in cheap rates. हाँ, रीजनेबली प्राइस भी होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट. यस. Okay, so let's discuss these points. First is employee satisfaction. We need to keep our employees satisfied. हम अपने एम्प्लॉइज को, और एम्प्लॉय सेटिस्फाइड कब होंगे? जब उन्हें फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर मिलेगा. अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर मतलब जहां पे उन्हें फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता हो, स्लेव्स की तरह नहीं. तो अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर. दूसरा मतलब फ्रेंडली एटमॉस्फेयर वेयर दे हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, देयर ग्रीवेंसेस आर रिड्रेस्ड इमीडिएटली. कोई उन्हें कंप्लेंट होती है तो इमीडिएटली हैंडल की जाती है, और उनकी केयर की जाती है. सेकंड, गुड वर्किंग कंडीशंस. वर्किंग कंडीशंस में क्या क्या आ जाता है? नेचुरल लाइटिंग. बिल्डिंग्स का डिजाइन ऐसा होना चाहिए हमारे ऑफिस का कि नेचुरल लाइट आए, वहां पे प्रॉपर लाइट हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ठीक है, टेम्परेचर कंफर्टेबल हो, सीटिंग कंफर्टेबल हो, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो, प्योर, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज हो. ये सब आ जाता है वर्किंग कंडीशंस में. और फिर तीसरी चीज आती है गुड सैलरी पैकेज. ये तीनों चीजें अगर हम अपने एम्प्लॉइज को देंगे तो अच्छे एम्प्लॉइज हमारे साथ स्टे करेंगे. और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की ये पहचान होती है उनके, आप देखोगे बहुत पुराने एम्प्लॉइज मिलेंगे अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में आपको, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉइज छोड़ना नहीं चाहते हैं जहां पे उन्हें इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं. ठीक है. सो फर्स्ट इज कीपिंग द एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड, क्योंकि एम्प्लॉइज जो हैं वो किसी भी कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स हैं. अगर एम्प्लॉइज अच्छे होंगे तो, और वो टिकेंगे कंपनी में, तो वो अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Next point is customer satisfaction. Once you have satisfied the employees, if your employees are satisfied, तो काफी हद तक तो कस्टमर आपके वैसे ही satisfied रहेंगे क्योंकि उन्हें अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस मिलेंगी. But apart from that, कुछ और चीजें ध्यान में रखनी है. कस्टमर्स को क्या चाहिए? अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, वो तो मिलेंगे अगर आपके एम्प्लॉइज अच्छे होंगे तो. रीजनेबल प्राइस, ये भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि प्राइस कहीं आपके प्रोडक्ट का इतना ज्यादा ना हो कि कस्टमर अफोर्ड ही ना कर पाए. ठीक है. तो रीजनेबली प्राइस होने चाहिए प्रोडक्ट्स, और कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए बिफोर सर्विस, बिफोर सेल भी, एंड ऑल्सो आफ्टर सेल. कई सेलर्स क्या करते हैं, सेल तक तो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे ही प्रोडक्ट सेल हो गया उसके बाद कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड करते. सपोज कोई प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर को प्रोडक्ट में, कस्टमर अप्रोचेस द प्रोड्यूसर, तो कई दिन तक उसकी कंप्लेंट ही अटेंड नहीं कर रहे. ऐसे में कस्टमर आगे से उस कंपनी के प्रोडक्ट्स
खरीदना प्रेफर नहीं करेगा, और बाकी लोगों को भी बोलेगा कि भाई इनके प्रोडक्ट मत खरीदना, ये बेकार, सर्विस बड़ी बेकार है इनकी, एंड वाइस वर्सा। अगर सर्विस अच्छी होगी तो वो औरों को भी रेकमेंड करेगा। इसलिए ज्यादातर अच्छी कंपनीज कोशिश, उनकी क्राइटेरिया होता है कि अगर कस्टमर की कोई भी कंप्लेंट या क्वेरी आई है, विद इन 24 आवर्स दे ट्राई टू रिजॉल्व इट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। स्पेशली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री sir. में हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो, तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफर करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट्स में, अदरवाइज आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, 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 sir. sir. तो बोल दिया करो यार। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है? Sir, to diversify the product line and provide more services. यस, टू प्रोवाइड न्यू प्रोडक्ट लाइंस। ठीक है, जैसे अभी आप अगर हम अगेन टाटा ग्रुप का एग्जांपल लें, वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स बिजनेस हाउसेज इन द वर्ल्ड, सॉल्ट भी बनाते हैं, टीवी, इंश्योरेंस सर्विसेज भी, एयरलाइंस भी है, विस्तारा। ठीक है, इंडियन, इवन एयर इंडिया वाज अर्लियर टाटा एयरलाइंस, गवर्नमेंट ने उसे टेक ओवर करके इंडियन एयरलाइन, एयर इंडिया बनाया था। नाउ अगेन दे आर इनटू एयरलाइंस इन एसोसिएशन विद सिंगापुर एयरलाइंस, विस्तारा के नाम से जो है। ठीक है, इंश्योरेंस sir. के फील्ड में भी हैं, ट्रक्स भी बनाते हैं, बसेस भी बनाते हैं, कार्स भी बनाते हैं, एसयूवीज भी बनाते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस के फील्ड में है, तनिष्क के नाम से ज्वेलरी के फील्ड में है। ठीक है, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हाईली डाइवर्सिफाइड। तो उससे क्या होता है, किसी, अगर आप एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद एक वो सिचुएशन आती है कि सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गया, कि जितनी उस प्रोडक्ट की डिमांड थी, अब और आपका मार्केट शेयर नहीं बढ़ रहा उसमें, तो आप दूसरा प्रोडक्ट स्टार्ट कर दो। उसमें सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए, अब तीसरा प्रोडक्ट स्टार्ट कर दो। तो इस तरह से डाइवर्सिफाई करके यू कैन ग्रो योर बिजनेस। अनदर एग्जांपल ऑफ हाईली डाइवर्सिफाइड ग्रुप इज पतंजलि। ठीक है, वो भी बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस में बिजनेस चला रहे हैं अपना। क्लियर? Yes, sir. yes, sir. Next point is joint ventures. When two or more companies come together to form a new venture, a sort of partnership, Yes, sir. that is called joint venture. ठीक है, for example, Maruti Suzuki. Maruti is an Indian company, Sir, Suzuki is Vistara a and Japanese Singapore. company, and Maruti Suzuki is a joint venture of both these companies. So companies can join together. उससे क्या होता है, एक दूसरे, हर एक के पास कुछ यूनिक चीजें होंगी, किसी के पास फंड ज्यादा होंगे, किसी के पास टेक्नोलॉजी बेटर होगी, किसी का मार्केटिंग नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होगा। तो सब अपने अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको कंबाइन करके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Next is mergers and acquisitions. Merger is when two different companies join together to form a new business. A new entity comes into existence. Joint venture से ये कैसे different है? Sir, in this, sir, there is not a partnership-like thing, but more like owning something. Yes. Joint venture में जैसे हमने एग्जांपल लिया मारुति सुजुकी का, तो मारुति एक कंपनी है, सुजुकी दूसरी कंपनी है। ठीक है, दोनों ने मिलकर एक वेंचर, ज्वाइंट वेंचर बनाया, मारुति सुजुकी। लेकिन अब ये तीन एंटिटीज हो गई, मारुति एक अलग कंपनी अभी भी है, सुजुकी एक अलग कंपनी अभी भी है, और मारुति सुजुकी एक तीसरा वेंचर है जो दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, मर्जर के केस में क्या होता है कि दो जो पहले एग्जिस्टिंग कंपनीज थी उनकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, और सिर्फ जो नई एंटिटी बन गई वही अब एग्जिस्टेंस में रहती है। Yes, sir. एक्विजिशन में क्या होता है, वन कंपनी टेक्स ओवर अनदर कंपनी। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, टाटा वालों ने जैगुआर को टेक ओवर कर लिया, लैंड रोवर को टेक ओवर कर लिया। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हैं। वोडाफोन ने हच को टेक ओवर किया था।
बच ने उससे पहले एरिक्सन को टेक ओवर किया था, ठीक है। तो व्हेन वन कंपनी टेक्स ओवर द So बिजनेस, right now they- दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अगर आपने नाम सुना हो, सन फार्मास्यूटिकल्स, सुना है ना? yes sir. हाँ। No. इसके जो ओनर हैं, उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या थी? उन्होंने स्टार्टिंग कैसे की? एक लॉस मेकिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी को उन्होंने टेक ओवर किया, खरीदा, और अपनी एफिशिएंट मैनेजमेंट के थ्रू उसको प्रॉफिटेबल बना दिया। जब वो प्रॉफिटेबली चलने लगी, फिर उन्होंने ऐसी ही एक और कंपनी जो लॉस मेकिंग थी उसे खरीदा और टेक ओवर कर लिया, और धीरे धीरे उसका बिजनेस को भी प्रॉफिटेबल कर लिया, अपना सन फार्मास्यूटिकल में मिलाते चले गए। एंड स्टेप बाय स्टेप ही केप्ट डूइंग दिस, एंड टुडे इट्स अ मल्टी क्रोर कंपनी, सन फार्मास्यूटिकल्स, वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया। तो उन्होंने इसी बिजनेस मॉडल के थ्रू लॉस मेकिंग फर्म्स को एक्वायर करते गए और अपनी इफेक्टिव एफिशिएंट मैनेजमेंट के थ्रू, मैनेजमेंट स्किल्स के थ्रू उन्हें प्रॉफिटेबल कन्वर्ट करते गए, और उन सबको मिलाकर उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी आज की डेट में बना रखी है जो प्रॉफिटेबली चल रही है। सो दिस कैन बी अ वेरी गुड टेक्निक कि कंपटीशन में, अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो कंपटीशन में जो छोटी कंपनीज है उन्हें टेक ओवर कर लो। व्हाट्सएप को फेसबुक ने टेक ओवर किया, कितने Yes में? sir. कितने में? Sir WhatsApp, sir Facebook acquired WhatsApp. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, व्हाट्सएप को फेसबुक ने एक्वायर किया, टेक ओवर किया, कितने में? सर इंस्टाग्राम का याद है, $19 बिलियन, $19 बिलियन। अब इसमें एक क्वेश्चन माइंड में ये नहीं आया किसी के, आप लोगों के, कि व्हाट्सएप तो सर्विसेज फ्री है, तो फिर फेसबुक, yes sir. फिर फेसबुक उसे खरीदने के लिए $19 बिलियन क्यों स्पेंड कर रहा है? वो पैसा कहां से कमाएंगे? व्हाट्सएप की कोई चार्जेस तो है नहीं यूजर से जो लेते हो जिससे वो रिकवर कर लेंगे। Sir, Facebook makes money basically by selling data. यस, ये ध्यान रखना हमेशा, जितनी भी ये फ्री टू यूज एप्स या वेबसाइट्स होती है ना, एक्चुअली दे आर नेवर फ्री, द प्राइस इज आवर प्राइवेसी। ये सब हमारा डेटा डिवाइसेस से लेती हैं और कहां कहां सेल करती हैं हमें पता भी नहीं होता। फेसबुक ने क्यों व्हाट्सएप को एक्वायर किया इतने हैवी प्राइस में, जबकि उससे कोई रेवेन्यू नहीं आने वाला था उनके पास? क्योंकि फेसबुक का मेन रेवेन्यू आता है एडवर्टीजमेंट से, जो फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू क्या उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है? जब व्हाट्सएप कोई अपने डिवाइस पे डाउनलोड करता है तो उसके सारे चैट्स, सारे मैसेजेस, वो इंटरनेट पे जो भी ब्राउज कर रहा है, सर्च कर रहा है, सारा डेटा फेसबुक के पास जाता है व्हाट्सएप के थ्रू। और उसके बेसिस पर अगली टाइम जब आप फेसबुक पे, कभी आपने नोटिस किया होगा, आप कोई भी साइट, फेसबुक है या कोई और साइट है, उस पर लॉग इन करो, जो उन दिनों आप प्रोडक्ट खरीदने का प्लान कर रहे हो उससे रिलेटेड एड्स ही आती रहती हैं ज्यादा। उन्हें Yes, कैसे sir. पता चलता है? क्योंकि दे आर स्पाइंग ऑन यू। जब आप लॉग आउट भी होते हो उस साइट से, तो कुकीज नाम के कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो एक्टिव होते हैं आपके डिवाइस में, और वो सारा ये देखते रहते हैं कि आप नेट पे क्या सर्च कर रहे हो, आप डिवाइस में क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन वो साइट को पास पहुंचती रहती है, और उसके बेसिस पे वो आपको उसी से रिलेटेड एड्स दिखाते रहते हैं। Yes sir. So it is very important not to store, not to share any confidential information on any online platform. Yes, Sayam. Yes sir. But sir, they are not. The data is not taken by people. It's more of an artificial intelligence which uses the data and uses the keywords and sends it to the advertisement Yes, yes, that's company. absolutely So like the right. key They data have, can't be identified by someone. right, that's absolutely right. But this is that what we know, and even this much many people do not know. Many people don't Yes, even know this much. सेकेंडली, एक बार डेटा उनके सर्वर्स पे चला गया तो वो आगे उसको किस किस के साथ शेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सीक्रेटली अगर कर रहे हो तो हमें पता भी नहीं।
Yes, sir. ठीक है। और ये जो इतना हम कई बार न्यूज में सुनते रहते हैं, उसका सिस्टम हैक हो गया, फोन हैक हो गया, बैंक अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, तो ये सब इन्हीं केयरलेसनेस की वजह से होता है जब कोई अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शेयर कर लेता है या उस डिवाइस में स्टोर कर देता है जिसमें वो इंटरनेट यूज कर रहा है। तो ये अवॉइड करना चाहिए। Yes. Okay. Yes, sir. Have you heard the rabbit and tortoise story? Yes, sir. Yes, कौन sir. सुनाएगा? ग्रेसी सुनाओगी? Yes, sir. सुनाओ। So once there was a rabbit and a tortoise, and they decided to have a race in order to decide who was faster than in the both of them. Right. And then the rabbit was quite cocky of his abilities. And when the race began, the tortoise ran slow but consistently, whereas the rabbit, being overconfident, sat there to have a rest. Towards the end, the tortoise won the race and the rabbit lost. And the moral of the story is Slow and steady wins the race. slow and steady Never wins the to. race. Does the story end here? Does the I story guess, sir. end here? Yes, sir. Okay, I'll Yes. continue. I'll continue this story from here now. ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अब हमने जो डिस्कस किया ना उससे रिलेट करके इसे डिस्कस करेंगे। इस रेस के बाद रैबिट ने अपना स्वॉट एनालिसिस किया। कौन सा एनालिसिस? SWOT SWOT analysis. analysis. स्वॉट एनालिसिस। तो उसने अपना एक लिस्ट बनाई, जैसे मैंने आपको कहा बनाने को। उसने लिखा कि स्ट्रेंथ है मेरी स्पीड, आई कैन रन वेरी फास्ट, लेकिन मेरी वीकनेस क्या रही आज, आई एम लेजी। मैं बीच में रेस्ट करने बैठ गया, लेजीनेस दिखाई मैंने, और उसकी वजह से आई फेल asleep एंड आई लॉस्ट दिस रेस। तो उसने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज किया। एनालाइज करके उसने रैबिट को दोबारा से एक रेस के लिए इनवाइट किया, सॉरी टॉर्टोइज को। तो टॉर्टोइज ने कहा ठीक है, दोबारा रेस कर लेते हैं। अब इस बार रैबिट ने अपनी वीकनेस को ओवरकम किया। उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं बीच में रुकूंगा नहीं, तो वो कॉन्टिन्यूअसली भागता रहा और जल्दी से फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया और रेस जीत गया। ठीक है, किसकी वजह से? SWOT analysis. स्वॉट SWOT एनालिसिस। analysis. ठीक है, स्टोरी अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब की बार टॉर्टोइज ने स्वॉट एनालिसिस किया। उसने कहा यार ये तो इसकी स्ट्रेंथ है स्पीड, तो वीकनेस जो इसकी थी उसे इसने ओवरकम कर लिया है, स्पीड मेरी वीकनेस है। तो अब मुझे अपनी स्ट्रेंथ, ठीक है मैं हार्ड वर्किंग हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो उसने इस तरह से सोचता रहा, कुछ और स्वॉट एनालिसिस किया अपना, और उसने फिर से रैबिट को रेस के लिए इनवाइट किया। अब की बार उसने रैबिट को कहा कि भाई फिर से रेस करते हैं, लेकिन रेस कोर्स मेरी चॉइस का होगा, क्या रूट लेना है हमने वो मैं डिसाइड करूंगा। रैबिट वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैं लेजी भी नहीं हूं, कर ले जो मर्जी रेस कोर्स रख लो, एंड ही एग्रीड। अब रेस शुरू हुई, रैबिट फटाफट भागा, जो रेस कोर्स डिसाइड हुआ था, थोड़ी दूर पहुंच के रास्ते में रिवर आ गई। अब रैबिट परेशान, क्या करूं, स्विमिंग तो आती नहीं। तो वो किनारे किनारे भागे जा रहा है, ढूंढ रहा है कहीं पे ब्रिज मिलेगा। टॉर्टोइज धीरे धीरे रिवर बैंक तक पहुंचा, और उसे तो स्विमिंग आती है, उसकी स्ट्रेंथ है। वो स्विम करके रिवर के अक्रॉस फिनिशिंग लाइन पे फटाफट पहुंच गया। और रैबिट बड़ी दूर से कहीं ब्रिज उसे मिला, भागता भागता आया, लेकिन वो लेट हो गया पहुंचने में। तो टॉर्टोइज रेस जीत गया। तो रेस ने क्या स्ट्रेंथ अपनी रियलाइज की थी कि आई कैन स्विम, बट रैबिट की वो वीकनेस है, रैबिट कैन नॉट स्विम। तो इस बार स्वॉट एनालिसिस को यूज करते हुए टॉर्टोइज रेस जीत गया। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब स्टोरी अभी भी बाकी है, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। इस बार क्या हुआ, रैबिट और टॉर्टोइज दोनों अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस समझ गए और बड़े अच्छे फ्रेंड्स बन गए।
इस बार दोनों ने फिर से रेस करने का प्लान किया और इस बार कुछ और एनिमल्स को भी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया कि भाई तुम भी रेस में हमारे साथ ज्वाइन करो, मजा आएगा। और एनिमल्स ने भी ज्वाइन किया। तो अब क्या हुआ, जैसे ही रेस स्टार्ट हुई, रैबिट ने टॉर्टोइस को कहा कि तू मेरी पीठ पे बैठ जा। टॉर्टोइस बैठ गया। रैबिट फटाफट भागता हुआ रिवर बैंक तक पहुंच गया। जैसे ही रिवर बैंक आया, टॉर्टोइस ने कहा चल अब मैं उतरता हूं और तू मेरी पीठ पे बैठ जा, और उसको लेके रिवर क्रॉस कर ली टॉर्टोइस ने स्विम करते हुए, और ये दोनों बाकी एनिमल से पहले फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गए। अब क्या हुआ, कैसे जीत गए ये? कैन यू एनालाइज एंड टेल? Through joint venture. वेरी गुड, एक्सीलेंट। इन्होंने क्या किया? ज्वाइंट वेंचर किया, अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स का फायदा उठाया एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे की वीकनेस को ओवरकम करने में हेल्प की। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ज्वाइंट वेंचर्स। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो क्लियर Yes, है ये sir. सारे कॉन्सेप्ट्स अब इस चैप्टर के? Yes, sir. ओके, एनी डाउट एनीवन? No, sir. No, sir. ओके, Once upon a time, a turtle and a rabbit had an argument about who was faster. They decided to settle the argument with a race. The turtle and the rabbit both agreed on a route and started off the race. The rabbit shot ahead and ran briskly for some time. Then, seeing he was far ahead of the turtle, he thought he'd sit under a tree for some time and relax before continuing the race. He sat under the tree and soon fell asleep. The turtle, plodding on, overtook him and soon finished the race. Emerging as the undisputed champ, the rabbit woke up and realized that he'd lost the race. The moral of the story is that slow and steady wins the race. This is the version of the story that we've all grown up with. But our version of the story continues. The rabbit was disappointed at losing the race, and he did some thinking. He realized that he'd lost the race only because he had been overconfident, careless, and lax. If he had not taken things for granted, there's no way the turtle could have beaten him. So, he challenged the turtle to another race. The turtle agreed. This time, the rabbit went all out and ran without stopping from start to finish. He won by several miles. The moral of the story? Fast and consistent will always beat the slow and steady. It's good to be slow and steady, but it's better to be fast and reliable. But the story doesn't end here. The turtle did some thinking this time and realized that there's no way he can beat the rabbit in a race the way it was currently formatted. He thought for a while and then challenged the rabbit to another race, but on a slightly different route. The rabbit agreed. The turtle and rabbit started off. In keeping with his self-made commitment to be consistently fast, the rabbit took off and ran at top speed until he came to a broad river. The finishing line was a couple of kilometers on the other side of the river. The rabbit sat there, wondering what to do. In the meantime, the turtle trundled along, got into the river, swam to the opposite bank, continued walking, and finished the race. The moral of the story? First, identify your core competency, and then change the playing field to suit your core competency. The story still hasn't ended. The turtle and rabbit by this time had become pretty good friends, and they did some thinking together. Both realized that the last race could have been run much better. So, the turtle and rabbit decided to do the last race again, but to run as a team this time. They started off
And this time, the rabbit carried the turtle till the riverbank. There, the turtle took over and swam across with the rabbit on his back. On the opposite bank, the rabbit again carried the turtle, and they reached the finishing line together. Both the turtle and rabbit felt a greater sense of satisfaction than they'd felt earlier. The moral of the story? It's good to be individually brilliant and to have strong core competencies, but unless you're able to work in a team and harness each other's core competencies, you'll always perform below par, because there will always be situations at which you'll do poorly and someone else does well. Teamwork is mainly about situational leadership, letting the person with the relevant core competency for a situation take leadership. And that is the end of the story. So now we'll move to the next topic. Suppose you have to organize a picnic. ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. ठीक है, इसकी असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन सब आप लोग होमवर्क में कंप्लीट कर लेना. ओके सर. ठीक है. Okay, sir. अब हम आगे बढ़ते हैं. सपोज आपको अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करनी है, तो यस सर. आप क्या क्या करोगे बताओ. क्या क्या करना होगा आपको. सर, So deciding the Conveyance. venue. ऑर्गेनाइज करनी है 2-3 फ्रेंड्स के साथ मिलके. सर कन्वेंस. So deciding the venue. Deciding the venue, deciding the conveyance. Okay. सर फूड. Then एंड सर So arranging for necessities like food, water, and money. yes, collecting money, arranging conveyance, a bus or a whichever conveyance you want to travel in. Then making arrangements for refreshments, food. What else? So deciding the time. Deciding the time. Yes, very good. ये सारे काम आप अकेले कर लोगे या बाकी 2-3 फ्रेंड्स की भी कुछ हेल्प लोगे. सर वी विल डिस्ट्रीब्यूट द वर्क. वेरी गुड. तो सबसे पहले तो आप काम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि भाई किसी ने खाना अरेंज करना है, किसी ने ट्रांसपोर्टेशन की बुकिंग करनी है, किसी ने वेन्यू की बुकिंग करनी है ना. फिर उस काम को अलॉट करोगे कि भाई तुम इस चीज में अच्छे हो, तुम ये काम कर लो, तुम्हारी स्पेशलाइजेशन इसमें है, तुम ये काम कर लो. ठीक है, इस तरह से, है ना. यस सर. लेकिन काम देते हुए उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी साथ में दोगे या नहीं. जैसे आपने जिसको रिफ्रेशमेंट अरेंज करने का काम दिया है, उसको सिर्फ इतना कह देना काफी है कि भाई तुमने रिफ्रेशमेंट अरेंज करनी है, और डू वी नीड टू टेल समथिंग एल्स आल्सो. सर द बजट इट शुड बी नॉन अल्कोहलिक. यस, वेरी गुड. बजट, स्पेसिफिकेशंस. ठीक है कि भाई नॉन अल्कोहलिक होना चाहिए, नॉन सपोज वेजिटेरियन ओनली होना चाहिए, सपोज इतना पर हेड बजट में आना चाहिए. ठीक है, क्या क्या आइटम्स ऑर्डर करनी है, उसे इंस्ट्रक्शंस दोगे. इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन का जिसने अरेंजमेंट करना है उसे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दोगे कि भाई हमें कितने सीटर बस चाहिए, कितनी बसेस चाहिए, है ना. Yes, sir. यस सर. ठीक है. अच्छा, फाइनली पिकनिक वाले दिन सपोज सारे अरेंजमेंट हो गए, सब कुछ हो गया, अब आप चलने के लिए रेडी हो, लेकिन 2 फ्रेंड आपके आए नहीं अभी तक. क्या करोगे. चलने का टाइम हो गया. व्हाट विल यू डू. सर फोन करेंगे. उन्हें छोड़ के नहीं चले जाओगे. सर डिपेंड्स अपॉन द फ्रेंड. अच्छा फ्रेंड है तो वेट कर लेंगे, नहीं तो उसको छोड़ के चले जाएंगे, है ना. यस सर. ओके. हितेश आपका कैसा फ्रेंड है. सर हितेश कौन. हितेश कामरा. हितेश कामरा सर. हाँ सर अच्छा दोस्त है, वेट करेंगे. मैंने उसका नाम लिया, उसने वीडियो ऑफ कर लिया अपना, स्माइल कर रहा था पहले, इसीलिए पूछा मैंने. ओके सर. हाँ, क्या तो उसकी वेट करोगे. यस सर. वेट करेंगे, मे बी कॉल करेंगे उसे, पता करेंगे कि भाई कहाँ पर रह गए तुम. ठीक है, अगर कुछ ही देर में पहुंच रहे हो तो अच्छी बात है, अगर कुछ टाइम लगने वाला है
तो मे बी तुम रास्ते में कहीं ज्वाइन कर लो या सीधे वेन्यू पे पहुंच जाओ, है ना? यस सर। सपोज आप Yes, चल sir. पड़े सपोज आप चल पड़े अपने वेन्यू की तरफ और रास्ते में आपको पता चला ये तो यार यहाँ पे कोई धरना वगैरह चल रहा है, रास्ता ही बंद है, रोड बंद है, अब क्या करोगे? सर गूगल मैप्स खोलेंगे। हाँ, ऑल्टरनेट रूट देखेंगे, है ना? तो मतलब जहां कोई प्रॉब्लम आएगी किसी तरह की तो उसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन कुछ ट्राई करोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, है ना? Yes, यस sir. सर। राइट, ओके। सो लेट्स सी दिस लिस्ट। हमने जो मेनली डिसाइड किया, अभी डिस्कस किया, मेन पॉइंट सारे ये हैं ऑलमोस्ट: डिसाइड प्लेस, वेन्यू, टाइम एटसेट्रा, डिसाइड अमाउंट टू बी कलेक्टेड, मेन्यू, है ना? फिर काम को डिवाइड करो, कोई ट्रांसपोर्ट अरेंज करेगा, समवन विल अरेंज रिफ्रेशमेंट्स, समवन विल कलेक्ट मनी, समवन विल मेक बुकिंग्स, राइट? फिर ये सारे टास्क जो हमने डिवाइड किए हैं ये सूटेबल लोगों को असाइन कर दो। उसके बाद सबको इंस्ट्रक्शन दे दो। यस सर। उसके बाद इंस्ट्रक्शन दे दो किस टाइप का ट्रांसपोर्ट चाहिए, रिफ्रेशमेंट में कौन सी आइटम्स कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए, है ना? फिर हमने डिस्कस किया अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, व्हाट इफ समवन इज लेट, व्हाट इफ देयर इज अ ट्रैफिक जाम, राइट? तो हमें उसको सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड, Yes, sir. right? So now let us see, do you see something? Deciding place, venue, deciding means when we are deciding in advance for future, this is called planning. यस सर। ठीक है? फिर जब हम डिवाइड करते हैं काम को कि क्या क्या टास्क होंगे, ये इस पे आया नहीं, लिखा हुआ आना था, ऑर्गेनाइजिंग, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग, डिवाइडिंग द वर्क, अरेंजिंग द रिसोर्सेज, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ओके सर। देन अलॉटिंग वेरियस टास्क टू सुटेबल पर्सन, जो जो काम हमने डिवाइड किया है दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। जो जो काम होने हैं उन्हें सुटेबल लोगों को अलॉट करना या सुटेबल लोगों को उसके लिए अपॉइंट करना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। ठीक है? यस सर। फिर जिन लोगों को हमने काम अलॉट किया है उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना कि क्या करना है, कैसे करना है, उन्हें मोटिवेट करना, गाइड करना, दैट ऑल कम्स अंडर डायरेक्टिंग, गिविंग डायरेक्शंस। ठीक है? और अगर कहीं यस सर। कुछ प्रॉब्लम आ जाए जहां पे हमें लगे कि हम एज पर प्लान नहीं चल पा रहे, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। 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 कंट्रोलिंग मतलब ensuring that everything is going as per the plan, और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व करो so that we are back on the planned performance। ठीक है? और इन सब को मिलाकर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं? Management. मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट वी कॉल मैनेजमेंट। And with this, your 12th class syllabus of business studies is complete. ओके सर। सर अब नहीं आने क्लास पे? हाँ, जरूरत नहीं है। ठीक है? पूरा साल हमने इन्हीं चीजों को अब डिटेल में डिस्कस करना है। प्लानिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग को, स्टाफिंग को, डायरेक्टिंग को, कंट्रोलिंग को। ठीक है? तो ये एक समरी हो गई आपके पूरे 12th क्लास के सिलेबस की। डिटेल्स में हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो आना है Yes, भाई, sir. नेक्स्ट क्लास में भी आना है, अभी बहुत सारी क्लासेस में आना है। ठीक है? ओके सर। So we stop here for today. Any doubt, anyone, you can click on raise hand. ईशान, पूछो अपना डाउट। Sir, Tata being despite such a big company, why it collab with the Singapore Airlines for Vistara? Because since उनके रीजन रहे होंगे कुछ ना कुछ, मे बी दिस कुड बी द रीजन कि बहुत सालों से अब एविएशन इंडस्ट्री में उनका एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत साल पहले उनकी टाटा एयरलाइंस होती थी जिसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर करके एयर इंडिया बना दिया था, लेकिन अब बहुत सालों से उनका एयरलाइंस में एक्सपीरियंस नहीं है।
तो हो सकता है इसलिए उन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ कोलैबोरेशन की हो, क्योंकि उन्हें एयरलाइंस में एक्सपीरियंस है, तो उनके साथ Yes, sir. कोलैबोरेशन में ये स्टार्ट किया हो. That could be ठीक the है. reason. Does that answer your doubt? Yes, sir. Okay. Anything else? Anyone? No other doubt? Sir, I have to add something. Yes, sure. Sir, the question Ishan asked that why Singapore Airlines and Tata joint ventured for Vistara. Sir, when JRD Tata was fired from Air India in 1970s, Okay. sir, at that time there was a clause that Tata can't start its own airline Okay. in the future. Okay. So they can't compete with Air India. Okay, maybe I'm not aware of that. Maybe that could be one of the reasons. So that, sir, no, that's a clause in there. That's why they joint ventured, because it was like a leakage in that whole agreement. Okay, okay, maybe. Anything else, anyone? No. Madhav, do share the sir. source of this information with me. Send me this source of this information. I would like to study it further. Okay, sir. Okay, sir. Anything else, anyone? Okay, so we conclude today's session over here. Thank you, everyone. Thank you very much.